एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। Paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी? हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ, आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन या VKV स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933225553. Dr. P.S. Professor and Head, Department of Home Science, Nandina University, and our guest of honor, special guest, Dr. S. Kavita Anthony from Department of Home Science, Nandina University, Nandina, और हमारे कन्वीनर एंड मेरे फैकल्टी मेंबर डॉक्टर वेंकटेश्वर जी, निधि शेखावती, और जो इसके पीछे हमारे डिपार्टमेंट होम साइंस के कार्यकर्ता हैं, उनका जो बैक में जो काम किया है उसके लिए मैं सब और उपस्थित सभी जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं अतिथिगण, उनका मैं स्वागत करता हूँ। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय का विजन हम एक साफ है, हम समाज के हित के लिए काम करते हैं। हम महाविद्यालय एक ऐसा संस्थान जहाँ हम एक प्राइमरी लेवल से यानी एक ग्राउंड लेवल से एक मॉरल बूस्टअप करने के लिए प्रयासरत रहता है, जहाँ हम कैरेक्टर बिल्डिंग का भी काम करते हैं और दूसरा जो है वो बच्चों को या जो हमारी सोसाइटी को किस तरीके से रोजगार जोड़ा जाए इस कंसर्न में हमने पहले भी कार्यक्रम आयोजित किए। अब ये कार्यक्रम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द्वारा स्पॉन्सर किया गया है और इसमें जो सेमिनार हुआ राइट्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड वुमेन इन अंडमान निकोबार आइलैंड, तो आपका महिलाओं का क्या अधिकार है और महिलाएं सशक्त हो, ये हम पहले भी कहते रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि देश का विकास तभी संभव है जब हमारी महिलाएं, हमारी छात्राएं वो आपकी सशक्त होंगी। Women with disabilities group, it is the minority of minorities. They are less counted. Women with disabilities, they are less counted. Their voices are unheard. Their needs are not felt, and their issues are less discussed among common folk. So here, today, Dr. T. Venkatesh has created a platform
to discuss about the rights of women with disabilities. Here we have come forward the various stakeholders of the program, government officials, ICDS workers, NGOs, physically challenged women, students. We have created a platform for all of us to discuss the issues and challenges faced by women with disabilities. And we are here to understand and to sensitize the rights of women with disabilities, and we are going to find out the solutions at micro level, how to exercise the rights of women with disabilities. That is why this platform is created here. I congratulate and appreciate Dr. Venkateshan for organizing this type of workshop at Andaman Nicobar Island, because here women with disabilities, they face multifold discrimination. One is the discrimination phase of gender, next is the discrimination phase of disabled, and discrimination in terms of geographical and cultural conditions, diversities also. So here I congratulate him. I hope this seminar will certainly influence the younger minds, will bring some changes in the life of women with disabilities. Congratulations, and I appreciate and wish this program to be a successful one. Thank you. The women with a disability are most disadvantaged section of society. They suffer lot of discrimination at different levels. Family, society, in terms of education, employment, and using community services also. And women with physical or mental disability are often denied equal enjoyment of their human rights, and they are needed. They are not coming out. People who are coming out to do some work, to utilize the community services are very few, and their rights, the facilities to be given to them, the services to be given to them are mostly unrecognized by the society. For example, suppose a person with a wheelchair like to utilize the ATM, he or she may not be able to enter into the ATM and take the money. Likewise, she cannot stand in the queue to get some tickets or to buy something. Not like Western countries, ours is not differently able to friendly society. For example, if you take bus, they have to climb with a very great difficulty. In Germany, the level of bus and the road will be almost equal, so that they can enter into the bus with wheelchair or stretchers like that. So, even the government is giving more importance for welfare of differently abled, rehabilitation and development of differently abled. Still, we have a long way to go. Now I request our Chief Guest, Srimati Smita Alayas, to kindly come forward and say a few words. Namaste and good morning to all of you. I first want to congratulate the JNR College for holding such a seminar, because it is a very important subject. As Madam has said in her address, women, especially disabled women, are more marginalized. Disabled as such is a difficult situation, so we don't know, we are bestowed with all faculties, and once we suffer through something, we understand how difficult it is to manage daily life without the use of one limb or one arm. So being disabled itself is a difficulty, and a part of that being a woman is more difficult. So today's day-long seminar, I hope, will be
here and find a way forward for the Department of Social Justice as well as for the disabled people here. I would like to mention a few schemes. I think Anganwadi workers are here, so I would like to ask if anyone can tell me the schemes that हमारे पास कौन कौन स्कीम है ऐसे डिसेबल के लिए क्या क्या स्कीम्स है आपको मालूम है? कोई आंगनबाड़ी वर्कर को बताना क्या स्कीम्स है? एक बता दीजिए कुछ स्कीम है ना हमारे पास? क्या क्या स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के पास? हाँ, पेंशन देते हैं ना? हाँ, कितना है पेंशन? एक महीने का पेंशन कितना है? 2500 का पेंशन देते हैं। डिसेबल्ड विमेन का नहीं है, सारे डिसेबल का है। और अंडमान में 3557 लोग अभी पेंशन ले रहे हैं। करेक्ट है? ठीक है। और क्या स्कीम है? अप्लायंसेस। कुछ डिफिकल्टी है तो आपको क्रच चाहिए और ईयर हियरिंग एड चाहिए और कुछ क्या है वो सारा देते हैं कैंप्स में। अच्छा, और फ्री ट्रीटमेंट है। फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। कहाँ देते हैं? फ्री ट्रीटमेंट हो जाते हैं एंड स्पेशल कैंप्स एंड मेडिकल बोर्ड्स आंगनबाड़ी के साथ हो जाते हैं ना। और क्या है? फ्री बस पास है और फ्री पैसेज भी है। आपको पता है? हाँ, एक साल में एक बार हो जाते हैं फ्री बस पास और फ्री पैसेज एंड इंडियन आइलैंड फेरी टिकट्स आर आल्सो प्रोवाइडेड। ये दिव्यांग के लिए है ये स्कीम। एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी स्कीम है टू सपोर्ट टीचर्स विद डिसेबिलिटी। रिजर्वेशन ITAs में होता है, मेडिकल कॉलेजेस में है, 4% रिजर्वेशन हो जाता है। और डिसेबल के लिए, दिव्यांग के लिए एक होप है अभ्युदय कॉम्प्लेक्स फिरागंज में। इसके ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का है। आपको मालूम है? हाँ, ये कहाँ है? फिरागंज में है। और इधर फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 years देते हैं। एंड एक और स्कीम है, इसमें हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स और एस्टेब्लिशमेंट्स को ये रैम्प वगैरह और हैंडल वगैरह बना करके एक्सेसिबल करते हैं। मेरे ख्याल से कॉलेज का भी है, एक्सेसिबल है, ये एक्सेसिबल कॉलेज है, नहीं तो आप बता दें। और डिपार्टमेंट में ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स आते हैं, डिसेबिलिटी सेल इज आल्सो देयर। ठीक है। और कुछ स्कीम है? मैंने कुछ होना है क्या? ठीक है, यही है ना हमारे पास। ये है हमारे डिपार्टमेंट का इम्पोर्टेंट स्कीम्स है। ये आपको कुछ डाउट है तो इधर है आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, उनसे आप पता कर सकते हैं। और आई ऑल्सो विश दिस वन डे सेमिनार ऑल सक्सेस। पार्टिसिपेशन सारे का होना चाहिए और कुछ वे फॉरवर्ड भी इसमें निकलना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो इस वक्त हमारे साथ है सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर स्मिता मैम। तो आइए आज के प्रोग्राम के बारे में हम इनसे जानते हैं। Today morning, this Jawaharlal Nehru Rajagir Mahavidyalaya have inaugurated this national seminar on rights of differently abled women in Andaman and Nicobar Islands. They have done this with collaboration with the National Commission for Women. I congratulate the college for organizing this seminar, which will bring forth what are the needs and demands of women who are also Divyang. So women as such are marginalized, and being Divyang makes it very difficult for them. So I think this day-long seminar, especially they have resource persons from the Madurai Gandhigram Institute also. Dr. S. Kavita Maithili and Dr. K. S. Pushpa have come from the Gandhigram Rural Institute as special resource persons, and it's a day-long seminar with the participants among from Divyang Anganwadi workers and students of the college. I think the principal is also actively involved, and Dr. Venkadeshan, who is the convener of the workshop. So I think this day-long workshop will be very useful in formulating better schemes and policies for the disabled women of Andaman. Thank you. हमारे साथ है इस वक्त
प्रिंसिपल सर शर्मा सर, और हम आपको बता दें डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय इन एसोसिएशन विद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल सेमिनार और राइट्स ऑफ डिफरेंटली अबेल्ड वुमेन इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो आइए जो यहाँ पर प्रोग्राम हुई इसी के विषय में हम प्रिंसिपल सर से बात करेंगे और इनकी क्या राय है वो हम जानते हैं। नमस्कार। एक्चुअली ये नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन NCW के तहत ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। हमारा महाविद्यालय का विजन जो है ये है कि यहाँ की जो सोशल लोग हैं, मतलब जो यहाँ की जनता है और पर्टिकुलरली जो वीकर सेक्शन है उसको हम किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। इसके माध्यम से पहले भी हम गांव में जाके जो है कुछ ट्रेनिंग दिए हैं। इसके अलावा जो है कि जैसे पिकल्स ट्रेनिंग जो है था, जो है ये ब्यूटिशियन का था, मैं खुद भी गया जो है उसमें। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है महाविद्यालय का कि हम कैसे आइलैंड को सुदृढ़ कर पाए। दूसरा जो मेरा जो उद्देश्य है ये प्राचार्य कि करेक्टर बिल्डिंग, मतलब हम अपने बच्चों का करेक्टर सभी का अच्छा होता है, लेकिन हमारा इंस्पिरेशन होता है कि बच्चे मॉरली जो है इस देश को आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज़ यह है कि बच्चों को रोज़गार की जानकारी देना, क्योंकि रोज़गार जो है वो सभी को जो है पॉसिबल नहीं कि सबको गवर्नमेंट जॉब दिया जाए। तो हम इस डायरेक्शन में ही काम कर रहे हैं कि हम उनको गाइडेंस देते हैं कि भाई आप ये काम करो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो, इस तरीके के प्रोग्राम हम आयोजित करते हैं। बाकी महाविद्यालय का जो दूसरा कंसर्न है वो पीजी को लेकर है, वो इससे कंसर्न नहीं करता, लेकिन पीजी को लेकर भी हम ओपन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन के यहाँ हमारा विचाराधीन है, क्योंकि जो 1-1.5 साल के लगभग मुझे हो गया जो है, मतलब फरवरी 2021 में आया, जो मैंने महसूस किया एक, क्योंकि मैं ग्रामीण कल्चर से हूँ, मैं खुद गांव से रहने वाला हूँ, तो हर आदमी जो है, हर बच्चा जो है वो मेनलैंड नहीं जा सकता पीजी करने। ये मेरा अपना सोच है। इसके तहत हम थोड़ा सा प्रोसेस किए हैं। यदि होम साइंस में पीजी के लिए हमने प्रयास किया है, जूलॉजी में किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, फिजिक्स में किया है, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हम आगे जा रहे हैं। यदि हमें प्रशासन मंजूरी दे देगा और यूनिवर्सिटी से भी हमें कोई दिक्कत है नहीं, जो है यदि प्रशासन हमें थोड़ा ओके करेगा तो हम डेफिनेटली जो है महाविद्यालय में एक पीजी कोर्स, इन सारे पीजी कोर्स जो है वो खोलने की कोशिश करेंगे, और हमारे जो ग्रामीण बच्चे हैं उनको ना सहना पड़े। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से नहीं जा पाते, ये प्रैक्टिकल बात है। तो वही मेरा विज़न है। यही इसी के तहत हमने ये भी काम किया कि वहाँ जो हमारी ज़मीन थी जो है यहाँ गर्ल्स हॉस्टल के पास में, वो हमने उसको डिमार्केशन कराया, और उसमें हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हमने गेस्ट हाउस का, डबल स्टोरी गेस्ट हाउस का प्रपोजल जा चुका है। और उसमें हमारा विज़न था कि हम जब एडमिशन के टाइम पे देखते थे कि कुछ पेरेंट्स जो है इतने गरीब होते हैं कि वो होटल का किराया नहीं वहन कर पाते, तो वो मेरे को जो है, मैं तो प्रिंसिपल नहीं था लेकिन मैं देखता था, मैं रसायन विज्ञान से संबंध रखता हूँ जो है, तो उनके दुख को देखते हुए मैंने पहला ही विज़न रहा। 1 साल मैंने बहुत मेहनत की, DC ऑफिस के भी बहुत चक्कर लगाए हैं मैंने, तो मेरा काम हुआ। उसके तुरंत बाद जो है मैंने ये किया। अब देखिए मतलब कितना सफल हो पाएंगे, ये हमारा विज़न है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए, और आपने जो भी बात कही है हम आशा करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात को ज़रूर सुने, और जो भी आपने मांग जो भी रखी है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने वो भरपूर होगा। इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।